students, how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study our Earth, the blue planet. Points to study: about the Earth, layers of the Earth, horizon, the solar system, shape of the Earth, atmosphere, coast, movement of the Earth. Ready, steady, start. Following are the images of some of the planets of the solar system. Try to identify them and write their names. ये आप खुद से करेंगे. About the Earth. Our mother planet, Earth, is a unique planet. Out of the 8 planets of the solar system, only the Earth has life on it. Life is possible on the Earth because of the presence of the water and air. Nearly 71% of its surface is covered with water that gives it blue color. In fact, the Earth seems blue from the space because of the presence of water. Thus, it is also called the blue planet. The remaining 29% of its surface is covered with land. Okay, देखिए हमारे सोलर सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स जो हैं वो 8 प्लैनेट्स हैं, लेकिन सारे 8 प्लैनेट्स में से सिर्फ अर्थ जो प्लैनेट है उस पर लाइफ है. ओके, अर्थ का 3/4 पार्ट जो है उस पे वाटर से कवर्ड है, वो पूरा पार्ट जो है वाटर से कवर्ड है, और जो बचा हुआ पार्ट है उस पे लैंड एरिया है. ओके, हमारे प्लैनेट पे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लू एरिया है क्योंकि उस पे सबसे ज़्यादा वाटर है, इसलिए उसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है. ओके, शेप्स ऑफ द अर्थ. In the ancient times, people believed that Earth was flat and it had steep edges. They feared that they would fall off if they reached the edges. They did not travel to far off places due to this fear. Okay, एंशियंट टाइम के जो लोग थे उन्हें ये लगता था कि अर्थ जो है वो फ्लैट एरिया है और उसकी एजेस हैं. उन्हें ये लगता था कि अगर वो ज़्यादा दूर का डिस्टेंस कवर करेंगे तो उन एजेस से वो नीचे भी गिर सकते हैं. ओके, इन 1519 Magellan, a Portuguese sailor, took on a journey with a crew from Spain and proved that no one could fall off the earth. They sailed only one direction. This journey continued for 3 years, and after 3 years of sailing, they reached at the same place from where they had started. It proved that they had sailed around the earth. It also proved that the earth was round and had no edges. Okay, देखिए 1519 में एक पोर्टुगीज सेलर थे जिनका नाम था मगेलन. ओके, उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी स्पेन से और उन्हें ये प्रूव करना था कि जो अर्थ है वो फ्लैट सरफेस नहीं है. तो उन्होंने जब स्पेन से अपनी जर्नी स्टार्ट की तो 3 इयर्स तक उनकी जर्नी कंप्लीट हुई और 3 इयर्स के बाद वो दोबारा उसी प्लेस पर आए जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था. तो इस चीज़ से ये प्रूव हुआ कि जो लैंड है वो राउंड एरिया है और कहीं पर भी कोई भी एजेस नहीं है जिससे कि आप लोग गिर सकें. ओके, क्रिटिकल थिंकिंग. What would have happened if Earth was not round? ये आप खुद से करेंगे. You must know the Earth is about 150 million kilometers away from the sun. देखिए अर्थ जो है वो सन से 150 किलोमीटर्स की दूरी पर है. ओके, layers of the Earth. The Earth is made up of 3 layers. These are the crust, the mantle, and the core. The outermost layer of the earth is called the crust. The middle layer is called the mantle and the innermost layer is called the core. Okay, देखिए अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं और जो सबसे अंदर की लेयर है उसे कोर बोला जाता है, मिडिल लेयर को मैंटल बोला जाता है और आउटर मोस्ट लेयर को क्रस्ट बोला जाता है. लेयर्स ऑफ द अर्थ की पिक्चर साइड में लगी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं. एटमॉस्फेयर. There is a layer of air around the earth. This is called atmosphere. We can neither see the air nor touch it. We can only feel it. We can feel the air only when it moves. There are many gases in the atmosphere.
Oxygen is an important gas of the atmosphere. Oxygen is necessary for all the living things, that is human beings, plants, animals. We need oxygen to breathe. Okay, देखिए जो अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ पे उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, और एटमॉस्फेयर की जो लेयर होती है वो एयर से बनती है। एयर जिसे आप देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, वो भी तब जब एयर मूव करती है। ओके, एयर में ऑक्सीजन गैस होती है और उसके अलावा भी कई सारी गैसेस होती हैं, लेकिन ऑक्सीजन गैस जो होती है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, वो हर लिविंग बीइंग के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। हॉरिजॉन, हॉरिजॉन इज द लाइन वेयर द अर्थ एंड द स्काई अपीयर टू मीट। If you look at a distance, the earth and the sky seem to meet at a point. In fact, this does not happen. It appears because of the big size of the earth. Okay, देखिए हॉरिजॉन क्या होता है? हॉरिजॉन एक लाइन होती है जो कि स्काई और अर्थ के बीच में होती है। हॉरिजॉन एक लेयर होता है जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है आपकी जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं सन की, उनसे। ओके, कोस्ट, द प्लेस वेयर द लैंड एंड द सी मीट इज कॉल्ड द कोस्ट। Many cities are situated in the coastal areas throughout the world. If you stand on the coast facing the sea, you will see that the sky and the sea are meeting with each other at a distant place. But in reality, it does not happen. It is an illusion. Okay, देखिए जहाँ पर लैंड और वाटर एक साथ मिलते हैं या सी एक साथ मिलते हैं, उन्हें हम कोस्टल एरियाज़ कहते हैं। ओके, जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो बहुत सारी सिटीज़ में सिचुएटेड हैं। वर्ल्ड की बहुत सारी जगहों पे कोस्टल एरियाज़ देखे जा सकते हैं। अगर आप कोस्टल एरिया पे खड़े हैं और आप एक डिस्टेंस पे देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि सी और स्काई जो है वो एक दूसरे से एक एंड पे जाके मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Solar system. The sun and its 8 planets make the solar system. The 8 planets move around the sun in a fixed path. 8 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Okay, देखिए सन जो है 8 planets के साथ साथ सोलर सिस्टम में होता है। ओके, जो 8 प्लैनेट्स हैं आपके टोटल वो हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस, नेपट्यून। ओके, एक्स्ट्रा शॉट्स। इन 1961 अ रशियन एस्ट्रोनॉट यूरी गैगेरिन took a round of the earth in a spacecraft. Okay, 1961 में एक रशियन एस्ट्रोनॉट थी जिनका नाम था यूरी गैगेरिन। उन्होंने अर्थ का राउंड लिया था एक स्पेसक्राफ्ट से। ओके, The sun is a star and has its own light. Our earth has no light of its own. It gets light and heat from the sun. We also see many other stars and the moon in the night sky. These stars appear very small to us because they are very far away from us. Actually, they are very big in size. The sun is the nearest star to the earth. Okay, देखिए सन जो है वो एक स्टार है। ओके, और सन बहुत बड़ा स्टार है। सन के पास सबसे ज़्यादा लाइट है। बाकी जितने भी स्टार्स हैं और मून्स हैं सबको लाइट किससे मिलती है? सन से मिलती है। ओके, सन की खुद की लाइट होती है। सन हीट जनरेट करता है। ओके, नाउ द सन, द मून एंड द प्लैनेट्स एंड अदर स्टार्स आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। देखिए सन, मून और बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं और स्टार्स हैं वो सब मिलकर क्या बनाते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज बनाते हैं। ओके, ओरल स्किल्स। व्हाई इज अर्थ द ओनली प्लैनेट टू हैव लाइफ ऑन इट? विच गैस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स? नेम द लेयर्स ऑफ द अर्थ। फ्रॉम वेयर डज द अर्थ गेट हीट एंड लाइट? ये आप खुद से करेंगे। Movements of the earth. The earth spins like a top around an imaginary line called the axis. This is called rotation.
It causes day and night. The earth rotates from west to east. It takes around 24 hours to complete one rotation on its axis. Okay, देखिए एक इमेजिनरी लाइन होती है, उसे एक्सिस कहा जाता है, जिस पर जो आपका अर्थ है वो स्पिन करता है, ठीक है। जब आपका अर्थ स्पिन कर रहा है और एक इमेजिनरी लाइन आ रही है तो उसे एक्सिस कहा जाता है। अब जब अर्थ स्पिन कर रहा है उस एक्सिस पे, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। ओके, अब अर्थ रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट में, और अर्थ रोटेट करने के लिए 24 आवर्स लेता है, मतलब कि पूरा एक दिन। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। While spinning on its axis, the earth also revolves around the sun. It is called revolution. The earth revolves around the sun in a fixed path called orbit. The earth takes 364.5 days to complete one revolution around the sun. The revolution of the earth around the sun causes different seasons. Okay, देखिए यहाँ हम इसे थोड़ा समझेंगे। देखिए, जब अर्थ स्पिन करता है अपनी एक्सिस पे, उसके साथ साथ वो सन के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहा है। ये सन है, ये अर्थ है। अर्थ अपने ही एक्सिस पे, अपनी पोजीशन पे भी मूव कर रहा है, लेकिन साथ के साथ वो सन के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहा है। जब वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो एक ऑर्बिट होता है जिस पे वो परमानेंट रिवॉल्व करता है, उसी सेम ऑर्बिट पे। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन। इसे क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन कहते हैं। नाउ इसी की वजह से क्या होता है, आपके अर्थ पे डिफरेंट सीजन्स आते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स: यूनिक, ओनली, वन साइड ऑफ इट्स काइंड, सरफेस, आउटसाइड पार्ट ऑफ समथिंग, स्टीप विद अ स्लोप, क्रू, द पीपल वर्किंग ऑन अ शिप और इन aircraft, illusion, false idea, celestial, related to the sky, heavenly. Let's recapitulate. Our earth is a unique planet. The earth is the only planet that has life on it. The earth is also called the blue planet. In the ancient times, people believed that the earth was flat and it had steep edges. The earth is round and has no edges. There is a layer of air called the atmosphere around the earth. The sun and its 8 planets make the solar system. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।